Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about performance management and appraisal. So it is very much important for the human resource management that the employees should be given due respect and regards with regard to their performance. Okay, because you know that there are different people who are working in the organization with a different level of expertise and a different level of dedication, and again different level of performance. So organizations need to know who is performing high and who is performing low. So it is very much important that for organizations to know that the people are working in a requisite way or not. Okay, so this is very much important to see. So performance management जो है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एचआरएम का, जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉइज में से कौन बंदा जो है वो बेहतर काम कर रहा है और कौन जो है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, आया गोल जो है वो मीटअप हो रहे हैं या गोल जो है वो मीट नहीं हो रहे हैं, और ये सब हम जो है वो चेक कर सकते हैं जब हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बेहतरीन सिस्टम नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक जस्टिस जो है वो मौजूद नहीं है। अब या जो जो एक चीज़ जो है मतलब जो इक्विटी है वो प्रिवेल नहीं कर रही। सही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की जो नौयत क्या है और किस तरह लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल है क्या चीज़, आज का लेक्चर जो है वो हमें क्या बताएगा, हमें ये बताएगा कि अप्रेजल प्रोसेस है क्या चीज़, और उसके बाद हमें ये जो है वो चेक करना है कि टू डेवलप evaluate and administer at least 4 performance appraisal tools, and you will also be able to explain and illustrate the problems to avoid in appraisal performance, and you will also be able to list and discuss the pros and cons of 6 appraisal methods, and you will also be able to perform an effective appraisal interview and to discuss the pros and cons of using different raters to appraise a person's performance. Okay. So, what is the difference between the performance appraisal and performance management? When we say performance appraisal and sometimes we say performance management, what is the difference between the two terms? Performance appraisal is basically to evaluate the employee's current and the past performance related to his or her performance standard. Because organizations sometimes set a particular standard of performance for their employees. Because you are supposed to do your job in a designated way, in a particular way, which is available in your job description, and which is required by the job description are required by the leaders and managers of the organization. You are those standards might be related to either quality of the work or either quantity of the work. So these are the standards which are set to appraise the performance. And at the particular time period, the managers and supervisors just see whether uh, whether a particular employee has met the performance criteria or not, and has what are the lackings and what are the good things which that employee has done so far for the organization and in the workplace. So performance appraisal is basically is an act of evaluating the performance of the employee. So when we evaluate something, we have to evaluate with regard to a particular yardstick, particular measurement criteria, particular standard. So those standards which are used to measure the employee performance are called standards of the performance. They are already set for the joining, are these are part of the the job descriptions are the implies the context and the terms and conditions. So at a particular time period, say for example after a month, after 3 months, or normally the performance appraisal takes place at the end of the year. But sometime it is very much real time performance appraisal, and sometime it is done at
on the weekly basis. So performance appraisal is basically the evaluation which takes place when you evaluate the performance of an employee with the standard which you have set for that performance criteria. Okay, so performance management is basically it is a process. The employers used to make sure that employees are working towards the organizational goal. So performance management is a management tool. Performance management is a management process. Performance management is a management thinking, the management approach, which is used by the leaders of the organization, and it contains all the activities, policies, procedures, systems which are used in the managing the employee performance and managing even the appraisals, taking up the records and setting the priorities and setting the control system. So performance management is basically the function. It is basically the approach which managers use. So it is the set of all the procedures, policies, and systems which are involved to manage the employee performance. Right. So appraisal is basically the function which we perform, and the management is the system under which we performance management is the system under which we perform the activity of the performance. So this is the difference between the two. Why? The basic question is why should we appraise the performance? Why should we manage the performance? Okay, so when we have sometime people say that I am taking the salary, so I am doing the job, so there is no need that I should be checked whether I am performing well or not, because I'm a person of a certain quality. I possess certain level of expertise and certain level of the knowledge. I am a certain level of grade. So I am very responsible person, so there is no need to have a check over me. This is one approach. Do you agree with that? I think no, because organizations have to not only track the record of the activities their employees perform, but they have to see whether the employee activities are going on in a particular direction or not, or the stated direction or not, whether the employees are performing what they are supposed to do or not, whether the quality of the services is being provided to their customers or not in a designated way, in the way which has been designated by the organization, the way which matches the values and standards of the organization or not. If someone is not adhering to those policies and procedures, it means there is something wrong. There is something which needs to be corrected. There is something which needs the intervention of the leaders. So performance management is very much necessary. Why? Because increasing the use of the performance management tools by employers to manage the performance reflects the popularity of the total quality management concept. So there is the concept which we call the total quality management. So the total quality management is what? So in this process, the total quality management, we have to manage the quality at all levels, at and taking into account all stakeholders, taking into account all the aspects of the particular work and the work setting, to which involves not only the products or services, but it involves the producers, it involves the service providers, it involves the manufacturers, it involves the employees, it involves the leaders, it involves the system, it involves the consumers, everything which has a stake in a particular procedure is included in the managing the quality that we call the total quality management. Okay, so this is the belief that the traditional performance appraisals are often not just useless but counterproductive. So it is not necessary that at the end of a year you must just fill up the performer and say, oh, okay, the subjective thing is good, better, and best. And no, this is not the thing. In process, in today's concept, we have to manage the performance of the employees in a very systematic way, in a very scientific way, and we have to see what are the productive practices, what are the non-productive practices, what practices
are preferred by the organization, and what are the practices which are to be avoided by the organizations and by the employees. Okay, so there is a necessity in the globally competitive environment, the industrial environment, that every employee has to put the effort to focus, uh, and to provide the services which are aimed to achieve the organizational goal. Those goals, those strategic goals which are set by the organization, and which are at par with the organization mission vision, which are at par with the greater good the organization wants to create for the masses. Okay, if your activities are not in line with those mission and goals, it means you are parting ways with the organization. You are deviating from what you are going supposed to do. So performance management is very much necessary to keep yourself on the record, to keep yourself on the particular trade, you to keep yourself at the right direction. Because when we say in the human resource management, to place right person at the right place, okay, to put right person at the right place is very much important part of the management, which is the important part of the management. But the another thing is to put right effort in a right direction. So if your direction, you are putting the efforts, your direction is not good, your direction is not right, so every effort will be wasted. Every effort will result into the useless outcome. So you have to, in order to bring uh, the benefit to your effort, in order to bring value to your efforts, you have to align it with the, the greater good. Yes, Umair. Umair. Yes. So next is the introduction to appraising the performance. Why we appraise the performance? Appraisal basically play an integral role in the employee's performance management process. Appraisals also help in planning for correcting deficiencies and reinforce things done correctly. Okay, so appraisals not only set the direction as I said earlier, but appraisals are a very good thing. They let us know what is going wrong. So when we know what are our mistakes, what are our weaknesses, what are the things in which we are lacking, they tell us what are our vulnerabilities, what are our problems which we are facing. So through the appraisals, we know what problems our employees are facing. Those problems might be with regard to their lack of training, their lack of particular skills, their lack of the access to particular resources, their lack of the time. There might be the lack of role clarity. There might be the role conflict, or many other things might be there which are hampering the employee performance. So it is only possible due to the performance appraisal, where we know what sort of the problems our employees are facing. So the performance appraisal are not bad thing. These cannot be used to just they punish the people, just to sort out who are the good performers and who are the bad performers, and then rewarding the good performers and then punishing the bad performers. Yes, this is the one activity, but this is the performance management is not solely made for this thing. It is made for some sort of good things, and those good things include uh, knowing the deficiencies and then correcting them. So when I say, for example, as a teacher, I want to conduct a test. So this test not to just punish you or just decrease your grades, but it is just to know the level of your learning. And when I say, I find that someone has received lesser marks, so I can ask him or her what the problem he or she is facing. So if there is a problem, and we can share with each other, and we can arrive at the decision, and we can correct those the deficiencies, and we can resolve those problems.
so that the things then move on very smoothly. So this is the basic motto behind the performance appraisal system. Uh, Thirdly, the appraisals in identifying employee strengths and weaknesses are useful for career planning. So this is sorry. So sometimes if we say that the performance appraisal is the only thing which the HR managers have to do, or which is benefiting to the HR managers in the organization, no. This is a very very limited concept. Appraisals are beneficial for the employees as well. How the appraisals will benefit the employees? Yes, appraisals will also increase your strengths. When someone is there who tells you that you lack a particular set of skills, and managers know that their employees have certain skills, but if they have certain more skills of this level, they will be able to be promoted to the next higher rank. So in this way, we use these performance appraisals for the career planning, for their career growth, for the success, the success planning. Okay, so these succession planning. So we use these things as a tool to help employees in setting their career goals, to increase their strengths, to neutralize their the weaknesses, and to exploit their strengths. So these are things. Appraisals are some sort of uh, the SWOT analysis, you can say like that. So the fourth aspect is basically to appraisals not only affect the employees' career planning, but they also have a positive effect on employers' salary raise decisions. Okay, they also help employers, to take the salary decisions. Okay, मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉइज जो है वो अच्छी मतलब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि उन लोगों की सैलरी जो है वो बढ़ाना, ठीक है? और अभी आप देख रहे हैं खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है मतलब पे फॉर परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट, सही है? क्योंकि वहाँ पे सीनियरिटी की बुनियाद पे पे नहीं होती, वहाँ पे पे होती है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। तो जो बंदा परफॉर्म बेहतर कर रहा है, उसको जो है वो हम सैलरी मतलब ज़्यादा दे देते हैं, और अगर जो बंदा परफॉर्म सही नहीं कर रहा, उसको सैलरी जो है वो उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती। तो जो सीनियरिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में जो है वो मतलब एप्लीकेबल है या वहाँ पे अप्लाई होता है, तो वहाँ पे बंदों को की सर्विस को लेंथ ऑफ सर्विस को देखा जाता है, या उसके रैंक को देखा जाता है, ओहदे को देखा जाता है, या उसके ग्रेड को देखा जाता है, उसके हिसाब से सैलरी दी जाती है। Regardless of his or her performance, those people are enjoying the higher level of salary. So this is to some extent it is not justifiable, बिकॉज अगर एक बंदा नलायकी के 10 साल या 15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसने कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाई, मतलब चूंकि वो 15 साल से बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो सैलरी ज़्यादा ले रहा है, और जो बाद में आया है और वो काम भी अच्छा कर रहा है मगर उसकी सैलरी कम है, तो ये मतलब लुक्स इज समथिंग इज पिची इन इट, समथिंग इज वेरी मच के मतलब अनवांटेड ओवर देयर। ये इस वजह से है कि ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने फिर पे फॉर परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट दिया है कि मोर यू विल परफॉर्म, मोर यू विल गेट द पेड, यू गेट पेड। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट अब है, और उसके लिए ज़रूरी है मतलब जब अगर आप पे फॉर परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये चूँकि इंतहाई एक मतलब डिबेटेबल चीज़ जो है हो जाती है। क्यों पब्लिक सेक्टर में लोग जो है वो सीनियरिटी कॉन्सेप्ट को क्यों लेके आगे चलते हैं? क्योंकि ये बड़ा इजी है सीनियरिटी को डिटरमिन करना, और उसके हिसाब से जो है वो सैलरीज के रेजेस को डिटरमिन करना। इट इज़ क्वाइट इजी, देयर इज नो एनी मतलब ग्रेटर प्रॉब्लम इन इट, क्योंकि हमें पता है जो बंदा पहले आया उसको आप पहले दे दो, और जो बाद में आएगा उसको आप जो है वो बाद कम सैलरी दे दो। तो मैं इट इज़ वेरी मच जस्टिफाइबल थिंग, मतलब उसको ज़्यादा उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब आप पे फॉर परफॉर्मेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट अब लेके आगे चल रहे हैं,
So then you have to be very much careful to differentiate between the high performer and low performer. And you can do it only when there is an objective type of measurement, and you cannot do it when there is a subjective type of measurement. मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप मेजरमेंट में क्या फर्क है? ऑब्जेक्टिव वो है कि जिसके अंदर कोई जो विच इज एविडेंस बेस्ड, ओके, जिसमें एविडेंस मौजूद है, और वो एविडेंस जो कि आप समझें कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप झुटला नहीं सकते, ऐसी एविडेंस मौजूद है और वेरी क्लियर एविडेंस मौजूद है। और अगर सब्जेक्टिव जो है, जिस तरह मैं कहूँ कि उमेर बड़ा अच्छा बंदा है, और उमेर जो है वो कैसे अच्छा बंदा है भाई, तो मैं अगर कहूँ जी उमेर इसलिए अच्छा है कि वो 4 CGPA लेता है, ठीक है। अब जो मैं उसकी मार्कशीट लेके आगे कर देता हूँ, और उसकी जो मतलब असाइनमेंट्स में जो उसकी पार्टिसिपेशन है उसके सबूत ला के आगे कर देता हूँ, उसकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेशन को जो है ना आगे लेके आता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का हिस्सा है, जिसको कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता। देखें, सारे बंदे आपके मुखालिफ हो सकते हैं, वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो आपका मुखालिफ नहीं हो सकता। अगर वो कह रहा है, जो कह रहा है वो सच कह रहा हो, उसको कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये ऑब्जेक्टिव जो मेजरमेंट करनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के लिए फिर जो मेजरमेंट टूल्स आपने बनाने हैं वो उस लेवल के हों जो कि आपकी एम्प्लॉइज़ की जो परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से और मतलब डिनायबल तरीके से जो है वो मेजर कर सकें, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि एम्प्लॉई परफॉर्मेंस और एम्प्लॉई अप्रेजल जो है, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। So you can see the example of a tool which is used to appraise the performance of the students, classroom teaching appraisal, okay। तो इसको आप आई थिंक पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ है तो दाएं तौर पे देखें, इसका एक टाइटल लिखा जाता है कि जी आपका जो टूल है उसका नाम क्या है, ठीक है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है कि इवैल्यूएटिंग फैकल्टी फॉर प्रमोशन एंड टेन्योर क्लासरूम टीचिंग अप्रेजल बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लोग हैं जिनकी आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं उसमें हमने फैकल्टी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि किस लिए कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो बताया गया है इट इज़ फॉर द प्रमोशन एंड टेन्योर, ठीक है, और प्रमोशन के लिए है या टेन्योर के लिए है, ठीक है। और फिर क्या है, आप किस एस्पेक्ट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फैकल्टी परफॉर्मेंस जो है वो फैकल्टी परफॉर्मेंस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ज़्यादातर 3 जो है वो मेजर उसके काम के जो है वो एक्टिविटीज़ के एस्पेक्ट्स होते हैं। एक है टीचिंग, और दूसरा है रिसर्च, और तीसरा है एडमिन, ठीक है। आप किस एस्पेक्ट को देख रहे हैं? आया आप टीचिंग के एस्पेक्ट को देख रहे हैं, आया आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, या आप रिसर्च के एस्पेक्ट को देख रहे हैं? तो मतलब देखें इसके अंदर जो है वो मतलब ट्रेड ऑफ ज़रूर होते हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो रिसर्च में अच्छे होते हैं, और वो शायद ज़्यादा अगर रिसर्च को टाइम दे रहे हैं तो टीचिंग को कम टाइम दे रहे होते हैं। अगर कुछ टीचर्स जो है वो टीचिंग के मेथोडोलॉजी में या टीचिंग के पर्सपेक्टिव में अच्छे होते हैं, और उनका रिसर्च या एडमिन में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं होता, तो ये है कि आप किस एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारा टूल यूज हो रहा है वो क्लासरूम टीचिंग को देख रहा है। फिर जो अगली बात है वो आपने देखनी है कि अप्रेजल किसने करनी है, ठीक है। अप्रेजल जो है आप कौन कर रहा है अप्रेजल उसकी, तो अप्रेजल यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट कर रहे हैं। तो एक फैकल्टी को कौन अप्रेज कर सकता है? साल के तौर पर मतलब या तो उसके स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उसके पीयर्स यानी कि उनके कलीग्स कर सकते हैं, उनके सुपरवाइजर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है वो मुख्तलिफ लोग हैं जो अप्रेजल में जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी से जब आप टूल बनाते हैं तो पहले आप टीचर का नाम लिखें, कोर्स का नाम लिखें, टाइम लिखें, एकेडमिक ईयर लिखते हैं, ताकि पता चले कि कौन से टेन्योर के बारे में, कौन से सब्जेक्ट के बारे में, किस बंदे के बारे में जो है वो परफॉर्मेंस हो रही है। मिसाल क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे हैं
तो क्लासरूम टीचिंग में भी हर बंदे की कोई मैं खुद जो है वो 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आप 6 की एक मतलब आप जो है अगर बीबीए 2K19 वाले वो सिर्फ मेरी एचआरएम की टीचिंग के बारे में ही राय दे सकते हैं। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा रहा हूँ या कोई और सब्जेक्ट कैसे पढ़ा रहा हूँ, शायद आप उसके बारे में नहीं दे सकते। तो जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो भी हमने देखना है कि ये जो स्टूडेंट या ये ग्रुप कर रहा है तो वो कौन सी कोर्स को जो है वो मेजर कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट जो है वो एक उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि जी आपने क्या करना है। उनको आप स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन देते हैं। जब आप टूल एक बनाते हैं तो आप उसको कुछ डिस्क्रिप्शन ज़रूर देते हैं। और फिर मेजर आपने मिसाल को यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी लिखा हुआ है कि थाटफुल स्टूडेंट अप्रेजल कैन हेल्प इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। दिस क्वेश्चन इज डिजाइन फॉर द पर्पस एंड योर असिस्टेंस इज अप्रिशिएटेड। प्लीज डोंट साइन योर नेम, ठीक है। अब ये जो पहले था कि हमने अप्रेजल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की कि जो थाटफुल स्टूडेंट अप्रेजल है वो टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हम इनको रिक्वेस्ट कर दी, पर्पस बता दिया एक रिक्वेस्ट भी कर दी कि आप जो है वो आ जाएं और ये क्या नाम है अप्रेस करें या इस रिसर्च में या इस पार्टिसिपेट करें इस अप्रेजल के इस एक्टिविटी में। फिर साथ साथ आपने ये कह दिया कि प्लीज डोंट साइन योर नेम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि हम जब इसमें जो है वो एक टेक्निक यूज करते हैं कि जब आप लोगों से अप्रेजल लेते हैं और उनसे सर्वे कराते हैं, इसके बारे में राय लेते हैं, तो उसकी जो जो रिस्पोंडेंट्स हैं आपके उनकी जो आइडेंटिटी है उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा जाता है? ये एक ह्यूमन मतलब एक माइंड की बात है, एक साइकोलॉजी की बात है कि हम जो है वो आम तौर पर इस तरह के मरहले में जब हमें पता होता है कि हम हमारा जो है वो मतलब हम अगर अप्रेजल दें और वो अच्छा ना दें तो अगला बंदा नाराज हो सकता है, उसके रिपरकशन हो सकते हैं। तो वो हमारी एबिलिटी टू असेसमेंट पे असरअंदाज होते हैं, हमारे हमारे असेसमेंट की सलाहियत पे असरअंदाज होते हैं, क्या क्वालिटी पे असरअंदाज होते हैं कि वो फिर हम अगर हो सकता है लो ग्रेड देना चाहें हम ज़्यादा ग्रेड दे जाते हैं। मगर हालांकि इसका अपोजिट भी है कि जब कॉन्फिडेंशियल बात हो तो फिर हमें पता होता है कि जो कुछ नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो फिर ज़्यादा ही मतलब एडवर्स रिमार्क्स भी दे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रू और डेयरिंग रिमार्क्स तो वही होंगे ना जब आप अपनी आइडेंटिटी को शो करते हुए जो है वो रिमार्क्स दे जाए। मगर ये इट अगेन मतलब डिपेंड्स अपन अपॉन द कल्चर। अगर ऐसा कल्चर है जो वैल्यू करता है अपोजिशन को, जो वैल्यू करता है क्रिटिसिज्म को, तो उसमें तो लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपाना शायद इतना बेहतर ना समझें और उनका आइडेंटिटी छुपाना न छुपाने को ज़्यादा असरअंदाज ना होता हो। मगर ऐसा कल्चर जहाँ पे तनकीद करने को और वो उनको नेगेटिवली लिया जाता हो और लोगों को ये हो कि जी लोग जो है हमें इस सिलसिले में जो है वो मतलब उसका रिवेंज लेंगे और नुकसान देंगे, तो फिर वहाँ लोग जो है वो दे आर रिलक्टेंट टू गिव सम सॉर्ट ऑफ द असेसमेंट एंड इंप्रेशन, ओके। तो फिर आपने अगला बताया जी use the back of this form for any further comments you might want to express। और डायरेक्शन आपने यहाँ पे दी है कि आप जो है वो किस तरीके से लोगों को मतलब जो रेटिंग स्केल है आप उसके लिए डायरेक्शन आपने दे रहे हैं, ठीक है। कि आपका जो 1 है या 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा और 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये बुनियादी तौर पर 7 लिकर्ट स्केल है, ये 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल कहा जाता है। इसको आपकी जो रेटिंग है उसको उन्होंने 7 पॉइंट्स में जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें 7 जो है वो 7 का जो नंबर हाईएस्ट नंबर जो है वो एक्सेप्शनल को जाहिर करता है और 1 जो है वो लोएस्ट मार्क्स को इन वेरी पुअर कंडीशन को जाहिर करता है, ठीक है। तो आपने कहा जी रेट योर टीचर ऑन ईच आइटम गिविंग द हाईएस्ट स्कोर फॉर द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस and the lowest score for the very poor performance. Place in the blank space where each statement the rating that most closely expresses your view। और यस 4 जो एक मिड पॉइंट है। तो आप देख लें अगर एक बंदा आप समझ लें कि वेरी पुअर है तो आपने 1 दे दिया। आप कहते हैं जी वेरी पुअर तो नहीं है मगर एक्सेप्शनल है तो आपने 7 दे दिया। तो आप कहते हैं नहीं बस दरमियानी है तो आपने 4 दे दिया। मगर आप ये कहते हैं जी पुअर वेरी पुअर तो नहीं है मगर थोड़ा बहुत जो है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपने 3 दे दिया। आप कहते हैं जी अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है मगर थोड़ा थोड़ा अच्छा है,
तो आपने 5 दे दिया, आप कहते हैं जी काफ़ी अच्छा है मगर एक्सेप्शनल नहीं है, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आपने 6 दे दिया। इस तरीके से आप जो है वो हर एक स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो आप इवैल्यूएट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, तो आपने कहा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये एक्सक्यूज मी, ये निहान अली वो डोंट बेसिकली एनोटेट, ओके। So how do you rate the agreement between the course objectives and the lesson assignment? How do you rate the agreement between the course objectives and the lesson assignment? यानी कि आपका जो टीचर है वो जो लेसन वो बना के ले आता है या आपको असाइनमेंट देता है मिसाल के तौर पर, वो कोर्स से रिलेटेड होती है या नहीं होती, वो उसके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करती है या नहीं मैच करती, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको एचआरएम का कोर्स पढ़ाया जा रहा है और आपको असाइनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दी जा रही है, या आपको असाइनमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट की दी जा रही है जो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं करती। अगर ऐसी है, मैच करती है, और तो फिर आप इसके ऊपर ऐड दे दें। मिसाल के तौर पर आप बताएंगे इस पॉइंट पे कि जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी लास्ट टाइम, मिसाल के तौर पर कौन सी थी, वो कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है, और एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। तो मुझे बताएं कि वो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ जो हमारे जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव उसके साथ मैच करती थी या नहीं करती थी? बताएं जी पार्टिसिपेंट्स, मैंने आपको वो क्या है अनम्यूट ऑल जी, बोलें कोई। इस पे आप एक 1 to 7 क्या स्कोर देंगे? सवेरा, उमेर, पॉइंट समझ रहे हैं मेरी? सर आपकी असाइनमेंट जो थी बिल्कुल रिलेटेड थी। रिलेटेड थी, कितनी थी? यस फुल्ली सर 100% रिलेटेड थी हमारे ग्रुप 100% से। थी, 80% थी, और या इस 1 to 7 पे आप कितने मार्क्स देंगे? 1 to 7 की स्केल पे आप कितने रेटिंग देंगे? 1 देंगे, 7 देंगे या 5 देंगे? आवाज नहीं आ रही आप तक? हेलो, चलिए आप बात करें। असाइनमेंट जो दी थी आपने कोविड-19 पे, वो तकरीबन रिलेटेड थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। मेरी तरफ से उसके लिए रेटिंग है 5। 5, ओके, वेल डन, ठीक है। देखें मतलब अभी आप चूँकि हमने ये इसकी एक रीज़न हो सकती है कि अभी तक हमने जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो चैप्टर था वो शायद नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो उस वक़्त आपको ये लग रहा हो कि जी ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी शायद एसआरएफ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये देखें कि रिस्पोंडेंट्स जो है वो मैच करते हैं, वो चेक करते हैं कि आया वो हमारी जो असाइनमेंट है, जो भी चीज़ है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ किस तरह मैच करती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सी फैक्टर्स जो है वो आपके ऊपर असरदार होते हैं, सही है। तो ये ज़रूरी बात है कि आप की लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और आपकी लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कितनी है। तो ये यकीनन एक बंदे ने 5 दिया तो हो सकता है कोई 2 दे, कोई 7 देगा। तो आखिर में हम जाके इसका एवरेज बनाते हैं कि जी किस हिसाब से जो है वो मतलब लोगों का जो एवरेज रिस्पॉन्स है वो क्या था। और ये जो स्केल इन्होंने लिया है, ये एक बुक जर्नल आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ था, सॉरी ये जर्नल नहीं, बुक फैकल्टी फॉर प्रमोशंस एंड टेन्योर, ओके। तो ये उसका मिलर वालों का जो है वो का ये स्केल है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप बाकी भी जो सवाल है वो आप पढ़ सकते हैं और आप देखें कि आप किसी भी बंदे को, अगर आप किसी टीचर को किसी कोर्स को मद्देनजर रखते हुए आप मेजर करना चाहें तो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये आपके असाइनमेंट है, आपने जो है वो प्रीवियस कोर्स के या बल्कि आप अभी जो आप अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं ये बात यकीनन कहता हूँ कि ये जो आपके असाइनमेंट होंगी वो मैं उन टीचर से शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। ये आप इस पेज का प्रिंट निकालेंगे या आप वैसे बाय हैंड जो है वो नंबरिंग के साथ 1 2 के साथ आगे नंबर दे दें, टीचर का नाम लिखें, कोर्स का नाम लिखें, एकेडमिक ईयर और टर्म का नाम लिखें, और
जो भी 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हर एक के बारे में एक जो आप मुझे फिल करके आप मुझे ईमेल करेंगे, सही है? दिस इज फॉर योर असाइनमेंट इंक्लूडिंग मी। ओके, तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट है और दैट इज ये कि व्हाट आर द रियलिस्टिक अप्रेजल। ओके, तो रियलिस्टिक अप्रेजल क्या होती है? जैसे जिस तरह अभी इन्होंने मुझे 5 ग्रेड्स दिया, ठीक है, तो 5 ग्रेड आया, उन्होंने एक्यूरेटली इसको मेजर करके दिया या उन्होंने मेरे साथ रियायत कर दी, ठीक है, या उन्होंने मेरे साथ सख्ती कर दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि उसके अंदर जो बहुत सी और चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे अप्रेजल्स पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली जो हमारे मतलब हमारा जो कल्चर है, वो हमारा कल्चर क्योंकि ज़्यादातर जो है वो एक हम जो कलेक्टिव सोसाइटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे कल्चर में हम जो है वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, हम जो है वो किसी के साथ सख्ती नहीं करना चाहते, हम जो है लोगों को रियायत देना चाहते हैं, हम लोगों के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते, हम लोगों के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर जो है वो हल्का फुल्का हाथ रखते हैं। तो इसमें जो रियलिस्टिक अप्रेजल्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो समटाइम ये है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू गिव द सॉफ्ट इन लेस देन ऑनेस्ट अप्रेजल्स, ठीक है। उसकी भी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, और एक तो रीजन ये हो सकती है कि द फियर ऑफ हैविंग टू हायर एंड ट्रेन समवन न्यू। समटाइम जो है वो लोग इसलिए भी मतलब एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को यानी कि सॉफ्ट अप्रेजल्स दे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर सख्त जो है वो अप्रेजल्स देंगे या कम मार्क्स उनको देंगे तो आगे चलकर इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और हमें फिर और लोग जो हैं वो हायर करने पड़ेंगे या उनको और ट्रेनिंग करने पड़ेगी। तो फिर हम जब चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या चलो गुजारा कराओ, तो फिर जो है वो सॉफ्ट जो है वो देते हैं, ठीक है। दूसरा, अनप्लीजेंट रिएक्शन ऑफ द अप्रेजीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर मुझे लेकिन आपने अच्छे मार्क्स देते तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, तो वाह वाह गुड वेल डन, आप बड़े अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, तभी तो मुझे आपने 7 आउट ऑफ 7 दिए। मगर अगर आप किसी बंदे को एज ए लीडर और एज ए सुपरवाइजर और एज ए मैनेजर आप लो जो है परफॉर्मेंस देते हैं या लो अप्रेजल देते हैं, लो मार्क्स देते हैं, तो फिर वो रिपरकशन करते हैं, वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं, हमें परेशानित करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है वो बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। बाज़ औक़ात यूनियंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाज़ औक़ात सोशल प्रेशर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बंदों के ऊपर असरअंदाज होती हैं, तो लोग उनसे अवॉइड करते हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह भी चीज़ है कि हमें मतलब ये एम्प्लॉयमेंट हटकर रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने ये चीज़ देखी है। बीइंग ए रिसर्चर ऑफ organizational change and innovation and leadership, I have observed that people are not very much, open to give their opinions, okay, about their leaders, about their organizations, and especially when there is something damaging which is to be revealed. So they are very much reluctant to share the damaging information. अगर आप उनके लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो कैसे, तो वो जो है वो देने को तैयार नहीं होते, बजाय बावजूद इसके हम उन्हें बताते हैं कि जी आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बड़े मतलब कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, ये वो, मगर उसके बावजूद भी इस तरह के जो है वो सर्वेज में वो इंक्लूड नहीं होना चाहते। क्यों? वो बिगाड़ना नहीं चाहते, क्यों कि वो कोई भी बात जो है वो ऑन ग्राउंड करना नहीं चाहते, ठीक है। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, उसके अपने एक रीजंस होते हैं, मगर ये चीज़ जो है वो सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, और कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जिस तरह बारलादी और कल्याल का मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ, उन्होंने भी लिखा है कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में खासतौर पे ऑर्गेनाइजेशन चेंज और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो है लोग जो है वो दे आर वेरी मच रिलक्टेंट टू गिव द हार्ड, ओके, या मतलब टू पार्टिसिपेट इन सर्वेज व्हिच आर रिलेटेड टू लीडरशिप एंड एनी अदर सेंसिटिव इश्यूज। थर्ड पॉइंट जो है वो ये कंपनी अप्रेजल प्रोसेस दैट इज नॉट कंड्यूसिव टू ऑनेस्टी। हाँ, ये भी है कि बाद का हमारा जो प्रोसेस बना हुआ है वो मतलब उसमें हम ऑनेस्टी को और ऑनेस्ट ओपिनियंस को वो इनकरेज नहीं करते, ठीक है। अगर कोई बंदा ऑनेस्ट अप्रेजल देता है, वो कहता है जी ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, तो हर बंदा उसको कहता है कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं, आपने किसी के करियर का नुकसान पहुंचाया, आपने किसी के लिए नुकसान कर दिया, आप इस तरह ना करें,
ये वो इस तरह की चीज़ें, तो उनके ऊपर सोशल प्रेशर आते हैं, समाजी तौर पर भी और दूसरे अंदाज से जो है उनको मतलब है उन लोगों को डराया धमकाया जाता है, या मतलब ऑनेस्ट प्रैक्टिस है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर जगह जो है वो एक जेली जो है वो काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर्स जो है वो ऑनेस्ट अप्रेजल्स नहीं देते। अगली जो चीज़ है कि why मतलब soft appraisals are very much harmful for the organization. What are the hazards? What are the threats? What are the dangers of the soft appraisals? Why the hard appraisals are? Why the realistic appraisals are necessary? And why lack of realistic appraisals will be creating a lot of problems for the people? Because employees may lose the chance to improve before being forced to change the job. One thing which is more important, that is basically the soft appraisals are against the employees themselves. कैसे? जिस तरह आप एक स्टूडेंट है, वो पास होने के भी काबिल नहीं है और आप उसको 4 सीजीपीए में पास कर दें, तो हमने समझा कि वो स्टूडेंट के हम फेवर कर रहे हैं, उन्हें तो हम फेवर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट ड्यू टू सम और अदर रीजंस ही और शी इज गेटिंग हायर ग्रेड देन what he or she deserves, so what will be its impact? The adverse impact the student will be facing, that he or she will waste the time which was available to him or her for the improvement. ओके, वो एकेडमिक अचीवमेंट जो वो हासिल करना चाहता था या चाहती थी वो नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो क्या होगा फिर जी जनाब, वो टाइम गुजर गया और जब वो एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए जाएगा, इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो वहाँ वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये है कि टाइम आपका इम्प्रूवमेंट का क्या है? टाइम इम्प्रूवमेंट का ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं, टाइम इम्प्रूवमेंट का ये है कि जब आप काम कर रहे हैं, उस वक्त अगर कोई बंदा आपको बता दे कि जी आप ये गलत कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं, वो आपका हिंदी में कहते हैं सजन है, सजन है, वो आप बंदा आपका आपके लिए सिंसियर है, आपका मुखलिस है। ठीक है, वो आपके फायदे में है कि कोई बता दे कि भाई ये गलत कर रहे हो, कोई अजाई तारीफ कर दे और अजाया जो है वो आपको सॉफ्ट जो है वो अप्रेजल्स मिल जाएं और आपके ए ग्रेड मिल जाएं और आपको कहा जाए कि जी ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये तो बड़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो तो इम्प्रूव ही नहीं करेगा, वो कहेगा जो जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और इस वजह से मेरे अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई नीड नहीं है कि मैं अपने आप को जो है वो मतलब चेंज करूं या अपने अंदर कोई इस तरह की तब्दीली लाऊं। बात ये है कि बुनियादी तौर पर जो सॉफ्ट अप्रेजल्स हैं वो नुकसानकार हैं। किसके लिए नुकसानकार हैं? ये उन्हीं लोगों के लिए नुकसानकार है और एम्प्लॉइज के लिए ही नुकसानकार है। तो सबसे पहली बात ये। सेकंड जो मेजर इम्पोर्टेंट है, जो मतलब इम्प्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो है कि any problem which may be created by the organization in terms of the inaccurate performance appraisals, कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जो है वो लोगों को हाई परफॉर्मेंस के अप्रेजल दे रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस के अप्रेजल दे रहे हैं, 1 2 3 आपने जनाब उसको बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वो दे रहे हैं, और वो बंदा आगे जाकर किसी बहुत बड़ी एक्सक्यूज मी सर, उसे सरदर्द हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज कट रही है आपकी। जी अभी आ रही है आवाज? जी सर अब सही है। कंटिन्यू करें, सही है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां आपको लगता है कि आपने जनाब एम्प्लॉइज को जो है वो हाई परफॉर्मेंस के वो आपने देते रहे हैं अप्रेजल्स, और आगे चलकर वो एम्प्लॉय जो है वो किसी गलती उससे सरदर्द हो जाती है या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है और कस्टमर उससे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स ज़्यादा आ जाती है, या वो बंदा जो है मतलब कोई ऐसी सिग्निफिकेंट गलती कर बैठता है जिससे वो अपना या अपनी किसी कलीग का या ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर बैठता है, एंड यू अराइव एट द डिसीजन टू फायर दैट पर्सन, एंड आपने फायर किया और आगे वो बंदा जो है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल देके कोर्ट में जाके खड़ा हो गया। ठीक है, तो यकीनन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट।
तो बुनियादी जो रीज़न है वो ये है कि आपका काम क्या है कि आप एक्यूरेटली जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजेस करें, ताकि कल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। जैसा हमने पहले बात की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो इसमें एक चीज़ बताता जाऊं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज मैनेजमेंट फिलॉसफी that requires employees to continuously set and relentlessly meet ever higher quality, cost delivery and availability goals by eradicating the 7 wastes। कौन सी 7 wastes हैं? ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अननेसेसरी डाउन टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग कास्ट, मोशन एंड इन्वेंट्री। ओके, अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, हमेशा अपने आप को वी हैव टू चेंज अवर पोजीशन फ्रॉम द करंट लेवल टू द नेक्स्ट हायर लेवल। ओके, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज डायनामिक, चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। हमें उनके साथ अडाप्ट करना है और लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही हैं और जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाहिए, हमें अपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए। और उसमें मेजर जो बुनियादी जो रीज़न है वो ये है कि हमने जो वेस्ट हैं उन्हें डिक्रीज करना है। और 7 वेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई हुई है और एक जो है वेस्ट है ओवर प्रोडक्शन की। ओवर प्रोडक्शन जो है वो क्या है कि जब आप जो है वो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन लेवल है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाए। ठीक है, यानी आप जो है वो डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर ना रखें। ठीक है, और जब आपने यकीनन जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो यकीनन यू विल बी यू नो के falling in a position where you will be able to willing to offer or you willing to sell your products on a lower price। ठीक है, अभी देखिए आपने रिसेंटली जो हुआ पेट्रोलियम के साथ, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से कुछ जो है वो कंपनीज की प्राइसेस जो है पेट्रोलियम की वो माइनस में चली गई। ठीक है, माइनस में क्यों चली गई? माइनस में इसलिए चली गई कि प्रोड्यूस ज़्यादा हुआ, अब वो सेल नहीं हो रहा और आपने जो आपकी जो कैपेसिटी थी स्टोरेज की वो भी फिल हो गई। ठीक है, तो आपके पास चीज़ें तो आ गई, आपके कंटेनर भर गए, आपकी जो स्टोरेज की सारी कैपेसिटी भर गई, तो आप किधर करेंगे? तो डेफिनेटली यू विल रिलीज सम अमाउंट टू अदर पीपल। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है आप समझिए कि ओवर प्रोडक्शन आप करते हैं तो उससे भी जो आपके रिसोर्सेज और टाइम और एनर्जीज और जो है वो वेस्ट होती है। ठीक है, सेकंड जो वेस्ट है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ओवर प्रोडक्शन के साथ साथ एक और चीज़, अगर आप प्रोडक्ट्स इस तरीके से बना रहे हैं कि जिसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं, गलतियां आ रही हैं, ठीक है, तो यकीनन वो भी एक किस्म का वेस्ट है कि एक प्रोडक्ट जो है आपने उसकी चेक नहीं किया और आपने इंस्पेक्शन नहीं की, उसकी प्रोसेस को मॉनिटर नहीं किया और जब वो प्रोडक्ट तैयार होके जो है वो इंस्पेक्शन से गुजरती है तो इंस्पेक्शन के मरहले पे भी आपने पकड़ लिया कि इसमें डिफेक्ट है, या वो कस्टमर से के पास पहुंचने के बाद रिटर्न हो गई कि जी इसमें डिफेक्ट आ गया, तो यकीनन वो आपका वेस्टेज है, उसमें आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी मनी जो है वो ज़ाया हो गई। और उसके बाद अननेसेसरी डाउन टाइम, यानी जो है वो आपके टाइम जो है वो चीज़ों का ज़्यादा लग जाता है, या आप जो है वो प्रोडक्शन का जितने लेवल पे आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, और वो टाइम जो है वो आप मीट नहीं कर पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम आते हैं, प्रोसेसिंग की कास्ट है, मोशन, इन्वेंट्री की कास्ट। इन्वेंट्री से मुराद क्या है? जब आपने प्रोडक्ट्स जो है वो बना ली और वो आपको फिर स्टोरेज करनी पड़ रही है, ठीक है, और या आपने जो है वो ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवा लिया, वो आपके स्टोर में जो है वो भरा पड़ा रहे। तो ये है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में ये आपने आप को आपने चेक करते रहना है कि आया आप जो है वो
एवेलुएट करते रहते हैं, अपने आप को असेस करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये जब आप इस तरह का प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ किस्म के वेस्टेजेस से बच जाते हैं। और ये सब तब मुमकिन है जब आप अपने आप को अप्रेस करें, अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेस करें। ठीक है, and it requires each employees to continuously improve his or own personal performance from one appraisal period to the next. Okay, तो continuous improvement को हम so there are some major components which are used to comprise the performance management process. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो हम डायरेक्शन शेयरिंग करते हैं, ठीक है, रोल क्लैरिफिकेशन करते हैं, गोल अलाइनमेंट, डेवलपमेंटल गोल सेटिंग, ongoing performance monitoring, ongoing feedback, coaching and support, and performance assessment, then either rewards, recognition, and compensation. Okay, yeah, and then workflow and माइक्स ऑफ करें प्लीज। जी, डायरेक्शन शेयरिंग से क्या मुराद है कि सबसे पहले जब आप देखें, आप अपने एम्प्लॉइज को जब आप हायर करते हैं तो उन्हें आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो दे देते हैं। ठीक है, आपने बता देते हैं कि जी ये काम आपने करने हैं, और आप उनकी पूरी जो है वो जो डायरेक्शन है वो आप उन्हें देते हैं, या आपने आपके काम करने का तरीक़ेकार उन्हें बताते हैं, आप उनके गोल्स जो हैं वो आप बताते हैं, और आप फिर उसके साथ साथ जो है आप जो है वो आप बताते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए भी आप उन्हें बताते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। आइदर यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर स्टेटेड डायरेक्शन और नॉट, आप जो है वो काम अपना सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर रोल क्लैरिफिकेशन के मरहले में भी आप उनके जो हैं वो बताते हैं कि आया उसका जो किरदार है, जो रोल है, जो वो एक्टिविटीज़ या वो टास्क वो परफॉर्म कर रहा है, वो रोल्स जो हैं, वो जो टास्क उसके हैं, वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, यानी उस अगर ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा जो है किसी और बंदे को असाइन काम जो टास्क तो कर रहा है और अपने जो काम टास्क है वो नहीं कर रहा। तो ये रोल क्लैरिफिकेशन भी हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर ही करते हैं। ठीक है, कि आया कौन सा बंदा है जो उस वही जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मौजूद है, या जिसके जिसके लिए ही उससे पूछा जाएगा, या जो उसकी परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के उसमें क्राइटेरिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, और दूसरी जो बात है गोल अलाइनमेंट की। ठीक है, गोल अलाइनमेंट से मुराद ये है आया गोल्स जो हैं आपके वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंटल गोल सेटिंग आप बनाते हैं कि डेवलपमेंटल गोल सेटिंग ये है कि अगर आप गोल ऐसे बना रहे हैं, वो आपने देखना है कि आया वो गोल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यानी अगर आपने जो टारगेट बनाया और आपकी टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है, और फिर उस टारगेट आप अपने आप को अगली बार जो वो ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं, इसलिए आप थोड़ा हायर लेवल का टारगेट जो है वो आप अचीव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑनगोइंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ ये है कि आप एट द एंड ऑफ सिर्फ मॉनिटर न करें या आप इंस्पेक्ट न करें, मगर ऑनगोइंग करें के साथ साथ भी आप करते रहें। यानी कि आप एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस साल के बाद मेजर करें और पता चले कि एम्प्लॉय जो पूरा साल जो है वो उसने वेस्ट किया, इसलिए बेहतर है कि उसको आप मुख्तलिफ शार्टर जो है वो टाइम पीरियड्स में या इंटरवल्स में आप डिवाइड करें, और उसके बाद आप चेक करते रहें कि जी इस बंदे ने जो है वो किस किस्म के जो है वो टास्क जो है वो सरंजाम दिए हैं। सही है। सेकंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑनगोइंग फीडबैक का, कि सिर्फ मॉनिटरिंग ही नहीं करनी, लोगों को फीडबैक भी देते रहना है। ठीक है, उनको बताना है कि जी आप जो है वो मतलब किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है वो आप में क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हें देते रहते हैं। फिर साथ में कोचिंग एंड सपोर्ट भी करती है। कोचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उनको मतलब गाइड करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप उन्हें जो है वो इनकरेज करते हैं, आप उनको जो है वो उनकी मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, और सपोर्ट में जहाँ जहाँ उन्हें जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट जो है आपकी मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है और आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, आपके साथ फिजिकली
यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मशीन, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू डिफरेंट रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, सारी चीज़ें जो है वो सपोर्ट का एक मैकेनिज्म है, तो वो आपने प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल देन परफॉर्मेंस असेसमेंट आप करते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद आप वाकई ये सारी चीज़ें करने के बाद, सारी चीज़ें अवेलेबल करने के बाद, आप फिर जब आप अप्रेजल करोगे तो आप फिर जस्टिफाइड एबल आपके जो है वो ये एक्शन होगा कि आप करें। यानी अगर किसी बंदे को आपने गाइड ही नहीं किया, किसी बंदे को रोल ही क्लियर नहीं किए, किसी बंदे को आपने जो है वो कोई फीडबैक ही प्रोवाइड नहीं किया, उसका सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। So then you basically assess the performance of the employee when you have already provided him the support in terms of sharing of the direction, clarifying the roles, aligning the goals, and the setting the goals which are development oriented, and you also monitor the ongoing performance of the employees, and then provide them the feedback, not only feedback, but you also provide them with tangible support and intangible support and guideline. Then your assessment of the performance will be more beneficial to the employee and organization alike. Okay. Then those performance appraisals should be aligned with the rewards, recognition, and compensation. Without providing the rewards, without providing the recognition and the compensation, the performance appraisal system will not be beneficial to them. Okay, why people improve their performance? What is the benefit of improving the performance for an employee? If there is no any likelihood of any rewards for the improvement of the performance, so it will not be motivating anymore. Okay, so not only there should be the availability of the rewards, but the rewards should be justifiable. Okay, तो यहाँ पर दो जो है थ्योरीज काम करती हैं, जो है वो इक्विटी थ्योरी को हम सबसे ज़्यादा यहाँ यूटिलाइज करते हैं। और वो इक्विटी थ्योरी क्या है कि लोग जो हैं अपनी एफर्ट और अपनी परफॉर्मेंस के रेशो को मेजर करते हैं, ठीक है। लोग जो वो चेक करते हैं आया हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उसका कोई आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कोई उसका आउटकम उसका कोई है या नहीं है, मतलब मैं परफॉर्म करूं और मुझे उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। और फिर उसका मैं रेशो चेक कर रहा हूँ कि मेरा रेशो ऑफ इनपुट कितना है, मेरा रेशो ऑफ आउटपुट कितना है, आया मैं जो है जितना मतलब रिसोर्सेज या जितनी चीज़ें फॉरगो कर रहा हूँ उनके मुकाबले में जो चीज़ें मिल रहा है वो मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, ठीक है। यानी अगर एक बंदा इतनी ज़्यादा एफर्ट करे और उसको आगे से कोई रिवार्ड ही ना मिले, अगर रिवार्ड मिले तो रिवार्ड इतना वैल्यूएबल ही ना हो, ठीक है, उसका उतना वो उसका बेनिफिशियल ही ना हो, तो वो फिर परफॉर्मेंस जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी। फिर इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो सिर्फ अपनी नहीं चेक करता, मगर उसमें एक और भी है, तो वो इनपुट आउटपुट रेशियो अपने दूसरों का भी चेक करता है कि अगर मैंने इतनी मेहनत की, मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं मैंने असाइनमेंट बनाई 20 नंबर के असाइनमेंट के लिए मैंने इतनी रीडिंग की, इतनी पढ़ाई की, इतने बुक्स पढ़े, इतना जो है वो मैंने टाइम लगाया, इतनी मैंने रिसर्च की, इतनी मैंने मेहनत की, और 20 मार्क्स के असाइनमेंट में मुझे तो मिले 10 मार्क्स, जबकि दूसरा बंदा जिसने कॉपी पेस्ट किया और उसको मिल गया 20 में से 18 मार्क्स। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी इनपुट और अपने आउटपुट के रेशियो को मेजर करते हैं, फिर आप दूसरे की इनपुट और उसकी आउटकम के जो है वो उसको भी मेजर करते हैं। तो ये क्या है, ये जस्टिस परसेप्शन हैं। तो हम ये कहते हैं कि न सिर्फ जो है किसी भी बंदे की एफर्ट्स यानी परफॉर्मेंस को रिवार्ड भी करना चाहिए, मगर वो जो रिवार्ड का सिस्टम है इट शुड बी बेस्ड अपॉन द जस्टिस, इट शुड बी जस्टिफाइड, ठीक है, वो जस्ट हो, वो क्या नाम है ट्रांसपेरेंट हो, वो जो है वो इक्वल हो, ठीक है, इक्विटेबल हो, ताकि लोगों को ये फीलिंग ना हो कि their performances are not valued as it is being done in case of their other the competitors are course mates or classmates, in your case are co-workers, okay। तो ये बात है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है इट शुड बी अलाइंड विद रिवार्ड्स, इट शुड बी अलाइंड विद रिकॉग्निशन। तो रिवार्ड जो है फाइनेंशियल रिवार्ड भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड भी हो सकते हैं,
मगर रिवर्स रिकग्निशन क्या है, वो एक मतलब जस्ट जो है वो एक एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो भी काफ़ी होती है। या कोई आपने अवार्ड मतलब उसको सर्टिफिकेट दे दिया, या आपने उनकी कोई जस्ट जो है वो कोई अवार्ड दे दिया, तो वो भी एक रिकग्निशन है। कंपनसेशन ये है कि आपने उनको और कुछ सैलरी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या आप उनको कोई और बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीइंफोर्स कर रहा है। एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है कि अगर एक बंदे ने अच्छा काम किया, ठीक है, और आपने उनको शाबाशी दे दी, तो वो क्या होगा, मोटिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीइंफोर्स आपने कर दिया, ठीक है। और अगर एक बंदे ने बुरा काम भी किया, आपने रोका नहीं, तो फिर भी एक किस्म की रीइंफोर्स। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें एक क्लू दे रहे हैं कि जेंटलमैन यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वर्क फ्लो एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड रिटर्न, ठीक है। यानी आप रिवार्ड्स और करते हैं, मगर ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम है वो आपके उस वर्क प्रोसेस का हिस्सा बनाना है, ठीक है, और उस कंट्रोल प्रोसेस का आपको हिसाब बनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है वो उसको जो मतलब जो कंपनसेशन मिलती है उसके साथ आपने उसको अलाइन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, द हाउ टू डिफाइन गोल एंड वर्क एफर्ट, ठीक है। तो आप किस तरह कर सकते हैं जी, गाइडलाइंस आर फॉर इफेक्टिव गोल्स, ठीक है, और गोल सेटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू असाइन स्पेसिफिक गोल्स। गोल्स में कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। गोल्स में क्या खूबी है, तो वो गोल जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, और चैलेंजिंग भी होने चाहिए। और यानी चैलेंजिंग समझ लीजिए, चैलेंजिंग और डूएबल होने चाहिए, और फिर पार्टिसिपेशन जो है वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक गोल और अनस्पेसिफिक गोल में क्या फ़र्क है? स्पेसिफिक गोल ये है कि जो कंप्लीटली डिफाइन करे कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, ओके। ये स्पेसिफिक गोल है कि उसमें टाइम, ड्यूरेशन, लेवल ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें डिफाइन हुई हुई, ठीक है। कौन सा काम आपने करना है, किसके साथ करना है, कितने ड्यूरेशन करना है, कहाँ करना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, उसके टाइम गोल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ मौजूद होनी चाहिए। मेजरेबल गोल से मुराद ये है कि वो क्वान्टिफाइड टर्म्स में हो। मिसाल के तौर आप कहते हैं एक एथलीट को कि जी आपने दौड़ना है, भाई कितना दौड़ना है, रोजाना दौड़ना है, ठीक है। अच्छा ये तो चलो मेजरमेंट हो गया कि जी रोजाना की बात हो रही है, मतलब कितना, फिर आप उससे बताएं कि जी रोजाना आपने 2 किलोमीटर दौड़ना है, रोजाना आपने 1 घंटा आपने दौड़ना है, ठीक है, रोजाना आपने इतनी जो है वो कैलोरीज जो है वो मतलब है कि बर्न करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये अगर इस तरह के आप गोल्स सेट करती हैं तो दीज आर मेजरमेंट गोल्स, ठीक है। अगर सिंपली आप कहते हैं जी अच्छा काम करना है, तो अच्छा काम क्या होता है, ये कुछ सब्जेक्टिव टर्म्स है ना। अच्छा काम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टर्म्स आपने करनी है। कौन सा काम अच्छा होगा, ये क्वालिटी उसके अंदर हो तभी वो अच्छा होगा, ठीक है। आपने जी आपने प्रोडक्ट्स बनानी है, कितनी बनानी है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव टू टेल देम कि ये आपने इतनी बनानी। तो ये मेजरेबल गोल्स वो है जिसमें जिनको आप मेजर कर सकें, जिनके नंबर हों, जिनके में ड्यूरेशन हो, जिनमें टाइम हो, जिनमें ये चीज़ मौजूद हो, ठीक है। तो असाइन चैलेंजिंग बट डूएबल गोल्स। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जी गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, मगर चैलेंजिंग इतना हो कि डूएबल भी हो। यानी आप अगर किसी को डिफिकल्ट टास्क देते हैं तो वो डिफिकल्ट टास्क आप उसको दें एज पर द सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट पर्सन हैव, ओके। जो उनके अंदर कैपेसिटीज और मोटिवेशंस का लेवल मौजूद है उसके हिसाब से आप उसको दें। अगर आपका जो टास्क है वो उनकी कैपेसिटी लेवल से इंक्रीज हो जाएगा तो वो डूएबल नहीं रहेगा। ऐसा काम दें जो वो कर सके, ठीक है, ताकि उसके लिए बर्डन ना हो। हालांकि यहाँ पे भी एक चीज़ होती है कि जो डिमांड्स होती हैं, वो गोल्स जो होते हैं वो दो किस्म के गोल जो वो डिवाइड किए जाते हैं। एक चैलेंज हिंड्रेंस डिमांड मॉडल है, ठीक है। तो वो ये कहता है जी एक चैलेंजिंग डिमांड होती हैं और एक हिंड्रेंस डिमांड होती है। चैलेंजिंग डिमांड जो है वो होते हैं जो कि वो बंदे को मोटिवेट करते हैं। ये असल में बंदे के अप्रेजल की बात है कि जी आया ये कोई भी बात अगर आप कहें ना तो बंदे अप्रेज कैसे करता है ये उसके ऊपर मबनी है। अगर आप कहें कि ये काम आपने करना है तो ये डिपेंड्स कि जी आइदर दिस वर्क इज चैलेंजिंग और दिस वर्क इज हिंड्रेंस वर्क, ठीक है। तो वो इट डिपेंड्स अपॉन
हाउ अ पर्सन अप्रेजेस दैट वर्क। ओके, यानी अगर वो कहता है जी कि ओके वेल डन, मैं जो है वो मतलब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूंगा, उसकी सेल्फ एफिकेसी लेवल हाई है, उसका जो मोटिवेशन लेवल हाई है, उसका जो है स्किल लेवल हाई है, तो वो जनाब उस काम को बड़ा इंजॉय करेगा, ओके जी मैं कर लूँ। अगर वो समझेगा नहीं यार क्या मुसीबत पड़ गई यार, ये काम जो है वो और ज़्यादा है, तो ये तो मेरे लिए मतलब वो प्रॉब्लमेटिक है, मैं तो इसे कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे लिए तो ये इश्यूज हैं, इसकी लंबी लाइन बना लेता है, तो फिर वो चीज़ जो है उसके लिए क्या करेगी, स्ट्रेस क्रिएट करेगी, उसके लिए टेंशन क्रिएट करेगी। तो बहरहाल बात ये है कि हमें गोल्स ऐसे सेट करने चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ के लिए जो कि को हाई करें, मगर उनके हमने लेवल ऑफ जो है वो गोल्स की डिफिकल्टी को भी हमने देखना है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि आया एम्प्लॉइज के जो गोल्स हैं वो किस लेवल के हैं, और आया वो उनको मीट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए गोल्स के लिए आमतौर पर हम ये यूज करते हैं एक्रोनिम स्मार्ट गोल्स का। और स्मार्ट गोल स्टैंड्स एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, और आर फॉर रिलेवेंट, एंड टी फॉर टाइमली। और स्पेसिफिक से मुराद ये कि क्लियरली स्टेटेड गोल्स विद डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, यानी आप उसमें बताएं कि जी स्पेसिफिक गोल ये है कि आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर हमने अगर कहा जी दौड़ना है, तो दौड़ना है क्यों जी, आपने जनाब इतना वजन, इतने किलोग्राम वजन जो है वो कम करना है। ठीक है, और ये एक चीज बात होगी कि हमारा गोल बुनियादी तौर पर होना चाहिए कि वजन कम करना नहीं, इतने केजी वजन जो है या इतने पाउंड वजन जो है वो हमने डिक्रीज करना है और इतने टाइम पीरियड में करना है। ठीक है, और मेजरेबल में भी यही है कि जी आप मेजर कर सकें, इसके लिए आपके पास फिगर्स मौजूद हों। अटेनेबल से मुराद ये है कि आप टू टफ ना हो और टू इजी भी ना हो। ठीक है, जिन्हें पता वो हासिल कर सके। ठीक है, हमारा दूसरा, तो हमने कहा जी कि हमने वॉक पे जाना है, तो ठीक है जी सुबह वॉक करेंगे। अगले बंदे ने उस सुबह जो है वो बंदा हमें मिला नहीं, शाम को पूछा आपने वॉक पे नहीं आए, कि मैं गया था, कहाँ जी, जी हम मैं जो है वो गया नहर के किनारे खड़ा हो गया और 3 बार लंबी लंबी सांसें लेके जाके सो गया। बात हो गई हमारी, जो मैंने वादा पूरा किया था वो कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो अगर गोल आपने हैं ना, तो आप ये मेजरेबल हो, कितने हो, स्पेसिफिक हो कि हमने दौड़ना है तो किस नहर के साथ दौड़ना है और कितने टाइम के लिए दौड़ना है, और किस टाइम जाना है और किस टाइम वापस आना है, और वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज जो है वो आपने करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो स्पेसिफिक लिखी हुई हो और वो ऐसी हो जो मेजरेबल हो। ठीक है, रिलेवेंट से मुराद क्या है, रिलेवेंट गोल्स वो हैं जो आपके स्किल्स के साथ, आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, आपके बेनिफिट्स के साथ मैच करती हैं। ठीक है, आपके जॉब के साथ मैच करती हैं, आपके जो डिजायर्स है उसके साथ मैच करती हैं, आपकी जो प्रेफरेंसेस है उसके साथ मैच करते हैं, आपके जो कैरियर की जो है गोल्स है उसके साथ मैच करते हैं। फिर टाइमली इन रिफ्लेक्टिंग डेडलाइंस एंड माइलस्टोन। यस, बात का जो है वो डेडलाइन जो है वो बंदे के लिए बड़ी मतलब जबरदस्त चीज होती है, वो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जब डेडलाइन हो तो बंदा जल्दी एफर्ट करता है। ठीक है, अगर डेडलाइन लंबी हो गई, टाइम ड्यूरेशन लंबा दिया, तो हम लोग सो जाते हैं। ठीक है, और आमतौर पर बिल्कुल तब काम करते हैं जब जो है वो डेडलाइन नजदीक आती है, और अगर डेडलाइन नहीं है तो फिर लोग जो है वो बाज लोग तो काम ही नहीं करते। तो डेडलाइन का होना और टाइम ड्यूरेशन का जो है वो स्पेसिफिकली बेयर करना बड़ा जरूरी है। अगली जो बात है वो ये है कि हु शुड डू अप्रेजिंग। ठीक है, कौन बंदा होगा जो कि इस परफॉर्मेंस को अप्रेज करेगा, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि कौन अप्रेज करेगा। उसके लिए सुपरवाइजर्स अप्रेज करेंगे, यूजुअली डू एक्चुअल अप्रेजिंग। ठीक है, यानी सुपरवाइजर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रेज करते हैं। उसके बाद इट मस्ट बी फेमिलियर विद बेसिक अप्रेजल टेक्निक्स। ठीक है, सुपरवाइजर्स के लिए ज़रूरी है कि उनको अप्रेजल टेक्निक्स का पता होना चाहिए। सुपरवाइजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड अवॉइड द प्रॉब्लम दैट कैन क्रिपल द अप्रेजल्स। यकीनन उनको आप ट्रेनिंग करें ताकि उन्हें पता हो कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, जिनसे वो अप्रेजल जो है मुतासर हो सकती है। ठीक है, supervisors must know how to conduct appraisal fairly. Yes, the fair and just appraisals are very much necessary. ठीक है, तो सेकंड जो एस्पेक्ट है कि जी अप्रेजल कौन कर सकता है, सुपरवाइजर्स के साथ साथ पीयर अप्रेजर्स। ये ट्रेडिशनल वे था सुपरवाइजरी अप्रेजर्स का, इसमें जो है ये अख्तियार से सुपरवाइजर्स को दिया हुआ था।
अभी तो कॉन्सेप्ट है कि जी पीयर्स जो है वो भी अप्रेज अप्रेज कर सकते हैं। पीयर्स आप वर्क एनवायरनमेंट में जो है वो आपके कोवर्कर्स आपके पीयर हैं, ठीक है, और क्लासेस में आपके जो कोर्समेट हैं, क्लासमेट हैं, वो आपके पीयर्स जो है वो कहलाते हैं। तो आप ये यानी कि आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, तो वो आपको अप्रेज करें, ठीक है। और क्योंकि सुपरवाइजर्स जो है वो इतना इंटरेक्शन नहीं होता सुपरवाइजर्स का एम्प्लॉइज के दरमियान, जितना एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज के साथ होता है, ठीक है। तो बहुत सी इदारे ऐसे हैं, जिस तरह अमेरिकन मिलिट्री, फेसबुक, गूगल वगैरह, ये पीयर अप्रेजर्स को ज्यादा जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और प्रोसीजर जो है वो यूज होता है, वो है रेटिंग कमिटीज का, ठीक है। रेटिंग कमिटीज में ये होता है कि कुछ जो है वो सुपरवाइजर्स और उसके साथ कुछ और लोगों को जो है वो मिलाया जाता है। इसमें ये है कि जो कमेटी बनाई जाती है, उसमें आमतौर पर जो है वो इमीडिएट सुपरवाइजर्स को भी लिया जाता है, और साथ साथ 3-4 जो है वो दूसरे सुपरवाइजर्स जो है उनको भी लिया जाता है। तो फिर ये होगा कि जब मल्टीपल जो है वो रेटर्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो बायसनेस जो है डिक्रीज हो जाती है। शायद तो आमतौर पर जो है इमीडिएट सुपरवाइजर्स जो है वो किसी हिसाब से, किसी वजह से, किसी बंदे के साथ जो है वो बायस्ड हो जाते हैं। बायस यूँ हो जाते हैं कि एक बंदा जो है वो काम तो अपना अच्छा कर रहा है, मगर वो साथ साथ सुपरवाइजर की जो है हेरोहाई नहीं कर रहा, या उसकी यशमनी नहीं कर रहा, या उसके आगे पीछे नहीं फिर रहा, या मतलब बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो कि नहीं कर रहा। तो वो फिर एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है सुपरवाइजर्स के दिल में कि ये बंदा जो है वो घमंडी है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारे जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर जो है वो सुपरवाइजर्स जो है वो ये समझा जाता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, अगेन मैं चूँकि थोड़ा सा आपको रिसर्च इंसाइट्स के साथ साथ जो है वो चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये होती है कि जी आप उन चीज़ों को आसानी से समझ जाएँ, जहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा भी मुझे पूछ सकते हैं। तो हमारा जो मुल्क है, उसकी जो कल्चरल है, कल्चर के हिसाब से जो उसकी रैंकिंग बनी हुई है, तो उसमें जो डायमेंशन है कल्चर का, एक पावर डिस्टेंस का, ठीक है। तो हम हाई पावर डिस्टेंस का, यानी हमारे यहाँ ये तस्वर किया जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर जो वो इज जस्टिफाइड। यानी अगर कोई बंदा हायर पोजीशन पे बैठा हुआ है और वो ज्यादा पावर यूज कर रहा है, ज्यादा अथॉरिटीज यूज कर रहा है, और ज्यादा बेनिफिट जो है उसको हासिल है, और ज्यादा उसको जो है वो प्रिविलेजेस हासिल है, तो इट इज जस्टिफाइड। ओके, क्यों? क्योंकि वो बड़ा बंदा है जी, क्योंकि वो पावरफुल बंदा है, क्योंकि वो बड़ा सीनियर बंदा है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीजें जरूरी है। तो यही बात है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में फिर जो सुपरवाइजर्स बन जाते हैं, या जो लीडर उसकी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं जी कि हम क्योंकि लीडर हैं, तो लिहाजा लोग जो है वो हमें मतलब हमारे साथ दुआ सलाम करें, और हमें जो है वो सिंधी में हम कहें साइंसिंग करें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें फिर या कुछ और चीज़ें, क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज भी हर बंदे का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। एक एक चीज़ एक बंदे को अच्छी लगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को अच्छी लगे। तो सुपरवाइजर भी एक इंसान होता है, तो उसकी कुछ परसेप्चुअल बायसेस भी जो है वो उसके हो सकते हैं। तो इस वजह से एक बंदे की जो अप्रेजल होगा, उसमें कुछ ना कुछ बायस क्रिएट हो सकते हैं, मगर जब एक से ज़्यादा बंदे हों, 3 से 4 बंदों का एक बोर्ड बन जाता है, तो फिर वो जो लेवल ऑफ बायसनेस है वो इंक्रीज हो जाता है। मगर अगेन इट डिपेंड्स कि आप की जो कंपोजिशन है उस कंपनी की वो कैसी है, और उसके अंदर जो इमीडिएट सुपरवाइजर है, उसका उस कमेटी के ऊपर कितना कंट्रोल है, ठीक है। तो वो फिर ये चीज़ होती है कि रेटिंग कमेटीज बनाई जाती है, ठीक है। बायसनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और एक और तरीका है सेल्फ रेटिंग्स का। सेल्फ रेटिंग से क्या मुराद है? आपको खुद को जो है वो बताया जाता है कि आप अपनी जो वो परफॉर्मेंस को अप्रेज करें। तो इसमें जो आमतौर पे प्रॉब्लम आता है, ओवर स्टेटेड रेटिंग्स का, कि लोग जो है अपने आप को बड़ा मतलब वो अच्छा समझते हैं, समझते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसमें ओवर रेटिंग्स का जो है वो ज़्यादा बायस जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और अप्रेजल्स बाय सुपरऑर्डिनेट्स, ये अगेन एक न्यू जो है वो एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत हम सबऑर्डिनेट से उसकी जो है वो अप्रेजल्स कराते हैं, ठीक है। यानी आप अगर सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं, तो उनके सबऑर्डिनेट से जो है वो अप्रेजल कराई जाती है। मगर इसमें भी अगेन बायसनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो ट्रू एंड ऑनेस्ट जो है वो अप्रेजल्स देने के लिए तैयार नहीं होते, और ख़ास तौर पे तब जब वो उनको पता हो उनकी आइडेंटिटी जो है डिक्लेयर हो जाएगी। तो उस सूरत में तो बिल्कुल भी देने के लिए या डिक्लेयरिंग पोजीशन के लिए हर बंदा तैयार नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखें, और
उन्हें इंश्योर कराएं कि योर रिस्पॉन्स विल बी एनोनिमस एंड इट विल नॉट बी डिस्क्लोज टू सुपरवाइजर्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो परफॉर्मा डेवलप करते हैं उस परफॉर्मा में ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसमें नाम वगैरह या ड्यूरेशन या जेंडर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उसकी आइडेंटिटी को जो है वो डिस्क्लोज करती हो, इस तरह की चीज़ जो वो मौजूद हो। क्योंकि अब देखें ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी जो कंसर्न्स हैं वो सिर्फ बंदे के नाम, नंबर या इस तरह की चीज़ से ज़ाहिर होती हैं, और बहुत सी चीज़ें जिनसे ज़ाहिर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक जगह पे सर्वे कर रहा था, तो मैंने जो है वो एक बंदे को जो है वो क्वेश्चनियर पकड़ाया ऑफिसर को। तो मैंने कहा जी कि ये, उसने कहा जी ये क्या गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन मैं फिल कर रहा हूँ ये मेरे सुपरवाइजर्स को या लीडर्स को नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा जी देखिए मैंने इसमें आपका नाम वगैरह या ईमेल या कोई पर्सनल कांटेक्ट या इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं रखी। उसने कहा जी आपने मेरा डिपार्टमेंट रखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, और उसके साथ 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 आपने मेरा ग्रेड रखा हुआ है। तो अगर मैं बताऊं जी मैं केमिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हूँ और मैं 19वें ग्रेड में हूँ, तो मैं तो उसी वक्त पता जाऊंगा कि केमिकल डिपार्टमेंट में 19 ग्रेड का एक ही अफसर है। ठीक है, अगर आप कहें जी के फलाना जो है वो अच्छा हमारे कैंपस में, ठीक है, अगर आप हमारे कैंपस में आ जाएं तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर तो एक ही है। ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा जी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो ये एक ही बंदा है या दो बंदे हैं। ठीक है, और उसमें भी अगर आप जेंडर दे दें तो पता चल जाएगा जी फिला बंदा ये है, फिला ये। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है तो किसी न किसी हद तक रिवीलिंग होती हैं, तो वो कम से कम रखी जाती है इस तरह की सिचुएशन में। तो सिर्फ क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर फोकस होता है कि अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की अप्रेजल करनी होती है, तो वो फिर हम ज़्यादातर उसके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। अगला जो है कि हु शुड डू अप्रेजिंग में एक लेटेस्ट अप्रोच जो यूज होती है उसको 360 डिग्री फीडबैक का सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यानी पहले जो हमने बात की उसमें हो सकता है कि उसमें से कोई एक चीज जो वो आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुपरवाइजर से कराते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर से कराती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ पीएल से कराती है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेटिंग कमेटीज बनाती हैं या सेल्फ रेटिंग बनाते हैं। यानी कोई भी एक आप चीज यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठे यूज करें तो हम उसको आमतौर पर 360 डिग्री फीडबैक जो है वो कहा जाता है। और 360 डिग्री फीडबैक में आप क्या करते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एम्प्लॉय की कलेक्ट करता है और एक से ज्यादा सोर्सेज से कलेक्ट करता है। मिसाल तो आपने सुपरवाइजर से भी इंफॉर्मेशन ली, सबऑर्डिनेट से भी ली, पीयर से भी ली, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर से भी ली। तो ये सारी जब आप इकट्ठे लेते हैं तो ये 360 डिग्री का चक्कर जो है आपको करते हैं। ठीक है, इंटरनल कस्टमर कौन से होते हैं, यानी वो जहाँ जहाँ प्रोडक्ट आपकी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में मूव करती है। ठीक है, यानी बाज़ का जो है एक बड़ी कारपोरेशन के अंदर जो है एक डिपार्टमेंट की जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल होती है। ठीक है, तो ये आप एक दूसरे के इंटरनल जो है वो कस्टमर कराए जाते हैं, और एक्सटर्नल कस्टमर वो है जब आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरे जो है वो एंड यूजर्स तक या एंड कस्टमर्स तक जाता है, तो उनसे भी आमतौर पर फीडबैक लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो करेगा कौन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो करनी किसने है।